परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः भुञ्जते ते त्वगं पापः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। जी आचार्य जी शुरुआत करिए। आपने जैसे कहा आज शर्मा जी, आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू चैंट वन श्लोका फॉर मोक्षा फॉर लता मंगेशकर जी, एंड दिस इज आई थिंक we all should chant something because she was a real gem to our country. Can I please chant that and we all pray for her? Om Triambakai Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhanat Mrityormukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shantihi. Now today's topic is very beautiful, and it's based on the word called yajna. What we have done right now, this chanting and the prayer for somebody who's just left the body, is also called yajna. This is exactly what we're going to talk about today. Any selfless act that is done towards humanity with oneness in Ishvara is called yajna. Yajna is the most important ritual that is mentioned in our Vedas. Almost most of the Vedas talk about the Karma Kanda, that is the first portion of the Vedas, which talk about this fire ritual, and lots of hymns are dedicated towards this ritual. I'll just have a picture here where we have got some bricks and there is a fire. In case people who don't know what yajna is also called homa. And it's a ritual which is done invoking the fire god, and in fire deity we offer a lot of things like camphor, ghee, herbs, loban, gugal, etc. Now this is supposed to be a very important ritual and is a must, as said by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Why? Because it does the purification of air. Now, purification of air, when it is done, then we do not come across diseases like corona, which we are facing right now. Airborne diseases are not there because they were evaded because of this ritual called yajna. Here, yajna word has got two meanings. One is the fire ritual and the second is karma. Karma is yajna. Lord Krishna says, offer all your karmas as yajna unto me. Like, for example, bhakti yajna, jnana yajna. Whatever we are doing, we should offer all our actions unto the Lord. Even your daily actions that are there. For you go to the office and you are earning for your family. Now, the same karma, if you offer it unto Ishvara, that I am every day going to the office, God bless me, and I have to take care of my family. You please, I'm going to perform this as a karma because I have to take care of them. This is my grahastha and grahastha karma that is supposed to be done by me. When that every action that you perform daily goes unto Ishvara without expecting anything in result and having any attachment with it, it is called yajna. Now, yajnas are offered unto Lord Vishnu, who is the karma phaladata. This we are going to see in the verse number 13.
First yajna was done by Prajapati, Lord Brahma. That was for making this entire cosmos from the five major elements: the space, air, fire, water, and earth. The last right that a human being has when he dies is also a yajna. And in between, whenever that person is having this human body, that time also the Lord says that you should perform yajna. So we are born out of yajna, we die in yajna, and during the time we are there alive, we should perform all the actions which are called yajna. At the time, at the end of every yajna, whenever there is the performance of a yajna, at the end we always say na mama, it's not mine, and then we give away things to priest and other people who have come for the yajna. Now this is the same feeling which we use for all the karmas and say na mama. After doing every karma, you say that na mama, this body is not mine, that means I am not the doer, then your yajna is complete. In the ninth verse, Lord uses the word anyatra karma. This is any karma done for desire to gain fame, name, power, etc. is anyatra karma. We see that usually people get into things like charity or seva or helping people, other people. That's because they want to gain something. Now, if you want to gain something in return, then it's called anyatra karma. Anyatra karmas are not yajna karmas. Yajna karmas are all the karmas done selflessly, which are done for the benefit of others unto Ishvara. Now, selflessly done actions for the benefit of others unto Ishvara, it can be a very small act of karma that we do every day. For example, in your everyday meal, if you take out one chapati, like if your normal meal you have three chapatis, you take out one and say that this is my part of yajna that I am doing for others. So that will be a kind of a penance that you are doing. Eventually, if all of us do this kind of penance every day, this kind of yajna of not having that one extra chapati, then the price of atta or the dough that we make with it, is flour is going to go down, and all of us are going to get chapati equally. So it's not that you go around giving donations or charities or stuff like that, or doing seva, or you're not finding people to do seva. Somewhere, sometimes people come and they say, we don't have ants, who to feed? There are no birds these days, who to feed? No, just in your normal routine life also, if you can do this kind of karma, that is also called yajna. The 10th verse talks about the kamaduk, the word kamaduk. If you keep doing beneficial karmas for self and others constantly, then you become kamaduk. I become kamaduk for you. That means then I become that kamadhenu who is going to give you all the things that you have never even thought of gaining, that I, Ishvara, am going to bestow them to you if you do or take care of this Srishti, which is mine, and you don't consider yourself as you, but you consider yourself also as me, then I'm going to be a Kamaduk for you. I think I'll stop here, Sharma ji. Okay, fantastic. तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर एडिटर एंड कॉलमनिस्ट विठल जी नाडकर्णी, मुंबई से जुड़ चुके हैं. नाडकर्णी साहब, स्वागत है. थैंक यू. प्लेजर. तो अब हम चाहेंगे एक बार झा साहब, फिर पंकज जी के पास चलेंगे और फिर क्रम को आगे बढ़ाएंगे. जी, सबको नमस्कार. और जैसा आपने कहा शर्मा जी की आज का जो प्रसंग है वो बहुत गंभीर है, और इसको हमें सब दृष्टि से हमारे पैनलिस्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो जो 9वां श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, वस्तुतः जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि गीता जो है वो संपूर्ण वेद का एक तरह से सार है, तो जो कुछ भी यहाँ कहा गया है वो वेद में सब कुछ कही गई है बातें. तो इसमें जो यज्ञ की बात है, जैसा कि अभी उन्होंने वर्णन किया आचार्य राधा जी ने, तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यज्ञो भई विष्णु, यज्ञ जो है वो विष्णु का ही पर्याय है. और ये क्यों पर्याय है? क्योंकि
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जब सृष्टि का वर्णन है, उसमें सबसे पहले जो पुरुष तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वह ब्रह्म तत्व अपने को विराट के रूप में प्रस्तुत करता है। तस्माद विराट अजायत। और जो विराट है वो एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, जो अपने डायनामिक पावर, जिसको हम माया कहते हैं, जिसको हम शक्ति कहते हैं, उससे वह युक्त है। जब वह विराट इस रूप में प्रस्तुत होता है, तब वह उस शक्ति के द्वारा एक विशेष रूप से व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति, उसको यहाँ पे अधिपुरुष या कहीं पे जो है वो और रूप में पुरुष के रूप में उसकी संज्ञा दी गई है। तो वह जो है वहां से सृष्टि शुरू होती है। तो जो वह स्थिति है उसको प्रजापति कहा है। जैसा कि शब्द है कि प्रजा का जो मूल कारण है उसको प्रजापति कहा है। तो उस पुरुष या ब्रह्म से जो पहली बार प्रक्रिया शुरू होती है, उस प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। पुरुष सूक्त में उसको, चूंकि वह स्वयं है, अकेला है, दूसरा कुछ और नहीं है, इसका नासदी सूक्त में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। जब वह स्वयं है तो स्वयं की ही शक्ति से अपने को उद्भूत करता है, और उद्भूत करते हुए एक प्रक्रिया के तहत विराट और फिर पुरुष के रूप में आते हुए स्वयं अपने को दो भागों में विभक्त करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी बहुत अच्छी चर्चा है कि स एकाकी नई बढ़े में, वह अकेला था, उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अकेला किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वह प्रसन्न होने के लिए अपने को द्विधा अपादेयत, अपने को दो भागों में बांट लिया। और वो जो दो भाग है वही है पतनात पति पतनात पत्नी च। उसका आधा भाग पुरुष तत्व है और आधा भाग स्त्री तत्व है। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण वहां दिया है बृहदारण्यक में कि जो उसका वो कैसे है, तो कहते हैं अर्ध मृगल मिव। जैसे दाल का दाना होता है, वह बाहर से एक होता है लेकिन अंदर में उसके दो हिस्से होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे का पूरक है। तो इस रूप में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की अभिव्यक्ति होती है, और उसके बाद ये सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ऋषि ने यज्ञ कहा है। तो वो जो एक कॉस्मिक जो प्रोसेस है, जहां से ये सारी चीजें शुरू होती है, और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ का विकास होता है, और विकास के बाद ये मनुष्य, ये पशु पक्षी, जितने, जिसको हम जड़ चेतन जो कुछ भी कहते हैं, उस सब की सृष्टि होती है। इसीलिए अपने यहाँ धर्म सूत्र में जो जितनी चीजें हैं सबको प्रजा कहा है। जैसे हम वेस्टर्न सिस्टम में देखते हैं कि प्रजा का मतलब सिटीजन या वो एक तरह से हम जो प्रजा मतलब लोक है, ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इसको सिटीजन के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन अपने यहाँ प्रजा शब्द का मतलब है जो कुछ भी सृष्टि में है वो सब प्रजा है। इसीलिए धर्मशास्त्र में यहाँ तक एक नियम है कि जो भी स्टेट का हेड है या जो भी राजा है, उसको सृष्टि की एक एक चीज का केयर करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और इस रूप में जो पूरी यज्ञ की प्रक्रिया चलती है, उसी का एक सिंबल है, जिसको आचार्य राधा जी ने एक अपने यहाँ जो रिचुअल होता है उस यज्ञ की चर्चा की, और उसी के क्रम में ये सारी चीजें होती है। तो यज्ञ यदि संपूर्ण सृष्टि है, पूरे सृष्टि की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के की आहुति के रूप में यदि हम कुछ कर्म करते हैं तो वो फिर यज्ञ कर्म हो जाता है। और जब वो यज्ञ कर्म होता है तो उसमें कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसी कॉस्मिक प्रोसेस का एक हम पार्ट हैं और उसी के थ्रू हम अपने एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यदि उस कॉस्मिक प्रोसेस के एक पार्ट के रूप को भूल करके यदि हम मानते हैं कि मैं एजेंट हूं, मैं करता हूं,
मैं इस सृष्टि से अलग होकर कुछ कर रहा हूं, तो वह फिर बंधन का कारक बनता है। फिर आपको राग, द्वेष, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सारी भावनाएं मन में आने लगती है। तो ये जो पूरा मूल कारण है, उसी को वहां पे भगवान विष्णु या प्रजापति कहा है कि उनके लिए हम कर्म करें। यही 12वें अध्याय में हम जाते हैं तो जो 10वां श्लोक है उसमें कहते हैं कि तुम ईश्वर के लिए कर्म करो। ईश्वर के लिए कर्म करने का मतलब है कि वो जो एक कॉस्मिक प्रोसेस है, उसके पार्ट के रूप में अपना रोल प्ले करते रहो बिना किसी आसक्ति के। तो यदि ऐसा है तब तो निष्काम कर्म स्वतः होगा। एक होता है कि हम प्लान करके निष्काम कर्म करते हैं, जब प्लान करके करते हैं फिर भी एजेंटशिप हम में आ जाता है। एक है कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड यू हैव टू परफॉर्म योर एक्ट एज पर द इंडिकेशन गिवन बाय नेचर। तो ये जो चीज है वो बंधन से रहित होता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम इस रूप में अपने को देखो कि जो सिचुएशन अभी सामने है, उस सिचुएशन में तुम एक सेपरेट एजेंट के, एक आइसोलेटेड बीइंग के रूप में रोल मत प्ले करो। ये एक कॉस्मिक प्रोसेस है। इसी को 11वें अध्याय में उन्होंने विराट रूप दिखाया है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब तो प्रकृति के द्वारा नियोजित है, और तुम वो रोल इस रूप में प्ले करो तो फिर तुम्हारा जितना भी कार्य है वो यज्ञ हो जाएगा। और यज्ञ जब होता है तो केवल लोक कल्याण के लिए होता है, वो धर्म की स्थापना के लिए होता है, वो सबके सुख के लिए होता है। तो इस बात के द्वारा वो इस चीज को एक कहना चाह रहे हैं। और दूसरा जो एक श्लोक पे मैं थोड़ा सा और बोल के अपनी बात बंद करता हूं कि जो प्रजापति की बात आई, तो ये प्रजापति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा कि अभी बात हुई कि मूल कारण जो जगत का है वो प्रजा का पति है, और इस रूप में प्रजापति है। प्रश्नोपनिषद का जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न यही है कि पिप्पलाद के पास जब ऋषि लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते, कि यह जो सृष्टि बनी है, सृष्टि की जितनी चीजें बनी है, उसका मूल कारण क्या है। तो पिप्पलाद उत्तर देते हैं कि प्रजापति इसका मूल कारण है, प्रजापते। तो कहते ये प्रजापति क्या है, तो कहते प्रजापति जो है वो है रई और प्राण, एक चेतन तत्व है, और उसी का एक ग्रॉस लेवल पे जो है वो अन्न तत्व है, जिसका नाम वहां रई दिया है। फिर कहते हैं ये रई और प्राण क्या है, तो कहते हैं प्राण आदित्य है और रई जो है वो चंद्रमा है। और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ये अयन है, जो 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 प्राण है वो उत्तरायण है, और फिर रई जो है वो दक्षिणायन है। ऐसे करके फिर मास में आता है कि प्राण जो है वो शुक्ल पक्ष है, रई जो है वो कृष्ण पक्ष है। और फिर दिन में आ जाता है कि एक जो है वो रात है, एक है दिन है। और इस प्रकार जब देखते हैं तो अंत में आ जाता है कि प्रॉपर हीट एंड प्रॉपर मॉइस्चर बोथ आर द कॉज ऑफ दिस क्रिएशन। तो जब चैतन्य से युक्त होकर एक निश्चित तापक्रम, जिसका प्रतीक सूर्य है, और एक निश्चित जल तत्व का रूप जिसका सिंबल रई है और चंद्रमा है, तो इन दोनों के मिश्रण से सारी सृष्टि होती है। तो ये जो सारी चीज है उसको यज्ञ कहा है। इसीलिए दूसरे श्लोक में यहाँ पे कहते हैं कि प्रजापति ने इस यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की है, इसीलिए आपको उसमें अपना रोल प्ले करना है। और यदि ऐसा करते हैं तो जो पूरी प्रकृति है उसमें बैलेंस बना रहेगा, और जो पूरी प्रकृति में बैलेंस है तो फिर वो आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, आप उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। और इस तरह से जो भी इच्छाएं हैं, जो भी रिजल्ट आना है वो प्रॉपर वे में आएगा, और इससे आप भी प्रसन्न रहेंगे और प्रकृति की सारी चीजें भी ठीक रहेगी। तो इस रूप में यज्ञ करना यदि हमें है तो फिर वो निष्काम स्वतः हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये 2 श्लोक पे बोल के मैं अभी विराम लेता हूं, क्योंकि हमारे और पैनलिस्ट बोलेंगे आगे, दूसरे चक्र में हम बात करेंगे। बिल्कुल मार्वलस, अद्भुत, बहुत ही जबरदस्त। तो अब हम चलेंगे पंकज जी के पास। पंकज जी। यस, तैयार, लाउड एंड क्लियर। या पहला श्लोक जो आज का अध्याय, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, वो बड़ा अद्भुत श्लोक है।
और मेरा पसंदीदा श्लोक भी है कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इस कर्मयोग ने मुझे सुभाष जी इतनी प्रेरणा दी कि मुझे ये प्रतीत हुआ कि मैं संसार में किस लिए आया हूं। मैंने आत्मचिंतन किया तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे भेजा है कि जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ, जो मेरा वर्णाश्रम धर्म है, जिस सेवा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं क्या श्रेष्ठ कर सकता हूँ। मैंने चिंतन किया तो इस श्लोक की वजह से ही मेरे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। मुझे लगा कि मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करूं समाज, कुटुंब, देश के लिए। यहाँ कह रहे हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपकी हर तरफ निंदा होगी, आलोचना होगी, आप निंदा के पात्र बनेंगे, आप हंसी के पात्र बनेंगे। लेकिन यदि आप कर्म करते हैं तो उन कर्मों के द्वारा आप सिद्धि को प्राप्त होंगे। 16वें 17वें अध्याय में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कर्मों के पूजन के द्वारा भी आप सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। यानी कोई आदमी संसार में परमात्मा ने भेजा है, वो उसका भेजने का एकमात्र कारण यही है कि आप ऐसे कर्म करें कि परमात्मा को प्राप्त हो जाए और वापस से इस संसार में आना ना पड़े। और मैं समझता हूं कि इस सब के लिए ही हम गीता पढ़ रहे हैं कि हम कैसे मुक्त हो, हमारा साल्वेशन कैसे हो, हमारा मोक्ष क्यों हो, इसी के लिए गीता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तू कर्मों को इस तरह से कर कि तुझे संसार में आना न पड़े, तू मुझे प्राप्त हो जाए। और फिर ये समझा रहे हैं कि कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों में बनता है। वो कह रहे हैं कि जो काम के लिए तुझे भेजा वो तो तू कर नहीं रहा, बाकी सारे काम तू करने लग गया। तो अंत में जब उसका अंत समय आता है तब आत्मा उसकी विचार करती है, जब 2 मिनट में वापस रिकॉल होता है कि जो करना था वो तो किया नहीं, अब जाने का समय हो गया है। तो वो सोचता है कि मैं फिर माया में बंध गया। इसको बड़ा अच्छा एक भजन में लिखा है, लागा चुनरी में दाग। अगर इसे देखें तो आत्मा का परमात्मा से संवाद इससे सुंदर शायद होगा ही नहीं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद जिस काम में उसको लगना था, जिस वर्णाश्रम धर्म में मैंने उसे नियत किया था, वो नहीं कर रहा हूं, बाकी वो सारे काम कर रहा है जिससे कि वो बंध जाए। तो वो कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर तू उस यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म जिसके लिए मैंने तुझे भेजा है। क्योंकि कर्म ऐसे हैं जो आपको बांध भी देंगे। यदि आप राग आसक्ति रखते हैं तो बांध देंगे, लेकिन यदि आप इनसे मुक्ति के लिए कर्म करते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हैं, आप ये मान के करते हैं कि मुझे मैनकाइंड का भला करना है, तो वही कर्तव्य कर्म आपको मुक्त करते जाते हैं। तो कर्मों की गति बड़ी जबरदस्त है। आप एक अगर आसक्ति बुद्धि से उनको कर रहे हैं तो आप बन जाएंगे, और यदि आप कर्तव्य मान करके कि मुझे परमात्मा ने कर्तव्य दिया है और मुझे ये करना है सृष्टि के लाभ के लिए, तो वही कर्म आपको मुक्ति करा देते हैं। कितनी विलक्षण बात है। तो ये इस तरह से एक कर्तव्य कर्म की बात भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं। और सही बात है कि यदि हम सभी कर्म दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, तो फिर एक सवाल ये भी होता है कि फिर हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। तो श्री कृष्ण भगवान अगले 10वें 11वें श्लोक में अर्जुन को ये भी समझा देते हैं। वो कहते हैं फिर कि प्रजापिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि बनाई, तो हमारे सभी के पिता ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने सृष्टि बनाई, कर्तव्य कर्मों के विधान सहित किसका क्या कर्तव्य होगा, किसका क्या उसको करना है, प्रजा की रचना करके मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन करने की आवश्यक सामग्री भी प्रदान करने वाला है। यानी ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा जब हमारी रचना की, हमको यहाँ भेजा, कि ये जो तुम कर्तव्य कर्म जो तुम्हें करने हैं, जिसके लिए मैं तुम्हें संसार में भेज रहा हूँ, ये करते हुए ही तुम्हें आवश्यक सामग्री तो मिल ही जानी है जीवन यापन करने की। और इस कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें।
इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जब नचिकेता आत्म तत्व की विद्या लेने के लिए यमराज के पास गए थे, तो उन्होंने आत्म तत्व की विद्या प्राप्त करने के लिए यमराज को बहुत कहा। यमराज ने उन्हें भरमाने की बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें हजारों पुत्र दे देता हूँ, खूब सारा धन धान्य दे देता हूँ, ऐसा कभी खत्म न हो वो संपत्ति दे देता हूँ। तब नचिकेता ने उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेरे उद्धार के लिए हो, जो मेरा मोक्ष हो जाए। तब उन्होंने कहा फिर तेरे वापस जाएगा तू धरती पर, तो तेरे जीवन यापन की क्या व्यवस्था होगी? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि मैंने आपका दर्शन कर लिया है ना, तो मेरे जीवन यापन की व्यवस्था तो वैसे ही हो जानी है, आपके दर्शनों से इतना कल्याण तो मेरा हो ही जाएगा। तो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि तुम जाओ, अपने कर्तव्य कर्म करो, और तुम्हारे जीवन यापन की व्यवस्था तो देवता अपने आप कर देंगे, और उनको उन्नत करते हुए भी तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवान सृष्टि रचना के बारे में स्पष्ट कहते हैं कि एक चक्र है, सृष्टि चक्र। सृष्टि का भोग भी हो सकता है और आप इसको अपने कल्याण के लिए भी सदुपयोग कर सकते हैं। आप किसी का खून भी पी सकते हैं और किसी को खून दे भी सकते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में, कोई खून पीते हैं, कोई हर दूसरे तीसरे महीने में खून दान कर देते हैं, रक्तदान। तो ये सृष्टि एक सीढ़ी के समान है, इसके दो सिरे हैं। एक सिरा तो भगवान की ओर जाता है आपके अपने कर्तव्य कर्मों के साथ, और दूसरा सिरा आपको नरक की तरह ले जाता है। तो ये कर्तव्य कर्म हमारे एक सृष्टि चक्र एक सीढ़ी की तरह है, एक भगवान की तरफ ले जाएगा सिरा, दूसरा आपको नरक की तरह ले जाएगा। और यदि हम निषिद्ध आचरण जिनके लिए हमें मना किया गया है उनको करके और नरक में जाना चाहें तो यह हमारी स्वतंत्रता है। और उन्हीं कर्मों को करते हुए यदि हम जिस काम के लिए आए, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए, जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए, और सबसे मजे की बात है सुभाष जी कि ये कर्म ऐसे हैं जिनसे चाहे तो हम बंद भी जाएंगे, और उन्हीं को अगर ठीक बुद्धि से करते हैं, समता वाली बुद्धि से करते हैं, तो हम इन्हीं कर्मों से हमारी मुक्ति भी हो जाती है। तो ये समता वाली बुद्धि जिसका दूसरे अध्याय में भगवान ने बड़ा वर्णन किया, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे एक सुनार था जिसको भंडारे के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, तो उसके पास गणेश जी की और चूहे की मूर्ति थी चांदी की। उसको अब स्थिति ये बन गई कि भाई गणेश जी की मूर्ति भी बेचनी पड़ेगी और चूहे की भी बेचनी पड़ेगी, दोनों चांदी की थी और समान वजन की थी। अब वो सुनार के पास गया तो सुनार ने गणेश जी की भी रेट वही लगाई और चूहे की मूर्ति की भी रेट वही लगाई। तो महात्मा जी सुनार से लड़ पड़े, ऐसा निर्बुद्धि और मूर्ख प्राणी है तू, गणेश जी की भी रेट वही और चूहे की भी रेट वही, कैसा आदमी है तू? तो सुनार ने जवाब दिया कि महाराज, आपकी दृष्टि में ये गणेश और ये चूहा है, मेरी दृष्टि में ये चांदी है, तो मैं चांदी को देख रहा हूँ। यदि हम भी ऐसी समता से तत्व बुद्धि में ही अपनी बुद्धि रखें, तो हम भी इसी बुद्धि के साथ कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये कर्तव्य पालन हम यदि सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना से करते हैं तो हमारा कल्याण हो सकता है। फैंटास्टिक, गुड गुड प्रेजेंटेशन। तो अब हम थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और आज हम इस क्रम को थोड़ा सा अलग से लेते हैं और प्रोफेसर खंडेलवाल साहब को लाते हैं। खंडेलवाल साहब से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज के जो ये श्लोक हैं इनमें मॉडर्न मैनेजमेंट के क्या सूत्र छिपे हुए हैं। वो जय श्री कृष्ण आप सबको। जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। गीता का जो अभी तीसरे अध्याय के श्लोक हम ले रहे हैं, इन श्लोकों का मैनेजमेंट की दृष्टि से सीधा संबंध है। सार तत्व ये है कि भगवान कृष्ण का जन्म अपने देश में हुआ, भारत में, और उन्होंने गीता भी जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई। लाखों करोड़ों लोगों ने गीता को पढ़ा भी होगा, कईयों ने प्रवचन भी किए, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि गीता को व्यवहार में ला नहीं पाए। अधिकांश संस्थाओं में जो समस्या है वो लो प्रोडक्टिविटी की है। हमारे यहाँ मजदूरी की चोरी या समय की चोरी करने की आदत बहुत है, और यही कारण है कि गीता जैसी बड़ी ऊंची फिलॉसफी वर्क एथिक्स के फील्ड में हमारे देश में है, लेकिन व्यवहार में काम चोरी बहुत ज्यादा होती है, समय की चोरी बहुत ज्यादा की जाती है। यही कारण है कि पाश्चात्य जगत जहाँ गीता का जन्म नहीं हुआ, जैसे तैसे उन्होंने
वर्क प्लेस डिसिप्लिन, वर्क एथोस वगैरह को अपनाया, उनकी प्रोडक्टिविटी के लेवल हमसे आगे हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी का लेवल नीचा है। तो इन श्लोकों का हमारे देश की दृष्टि से सबसे बड़ा महत्व यही है कि हमारे यहाँ के लोग, हमारी प्रजा जो है, वो अपने अपने कर्म को करने में निष्ठा पूर्वक लग जाए। श्री कृष्ण भगवान का ये आदेश है इसमें। वो कहते हैं सकाम कर्म करने से बंधन होता है, इससे अगर अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य अर्जित होगा और बुरे कर्म करेंगे तो पाप होगा। लेकिन निष्काम कर्म एक ऐसा उपाय है जिसमें पाप और पुण्य दोनों ही नहीं लागू होते और इससे हमारा मोक्ष हो सकता है। तो निष्काम कर्म या लोक कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है उससे व्यक्ति को बंधन मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 9वें श्लोक का सार तत्व है। 10वें श्लोक में कर्म परंपरा का वर्णन भगवान ने किया, अर्जुन को बताया कि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म की परंपरा ब्रह्मा जी जो स्वयं प्रजापति हैं उनसे ही प्रारंभ हुई है और विश्व की रचना करके अगर वो कर्म नहीं करते, अगर वो रजोगुण में नहीं जाते तो इस सृष्टि की रचना ही नहीं होती। तो कर्म की परंपरा ब्रह्मा जी से स्वयं से प्रारंभ हुई। उन्होंने अपने पुत्रों को भी यही उपदेश दिया कि आप प्रजा की वृद्धि करो। कुछ ने उनका आदेश माना, कुछ ने नहीं माना। कर्तव्य यज्ञ से वृद्धि होगी कि कर्तव्य पालन या अपनी जो ड्यूटी है उसको एक यज्ञ का रूप मानो, इससे आपकी ग्रोथ होगी। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, या तो स्टेबिलिटी होगी या डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और कर्म करके ही सामग्री प्राप्त होती है, उसके बिना आपको साधन भी प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। 11वें श्लोक में ये बताया है कि कर्म करने से जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसमें देवताओं का अंश आप निकालो। क्योंकि ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं ने हमें हमारा जीवन जीने के लिए, कर्म करने के लिए बहुत साधन सुविधाएं दी है। सूर्य भगवान हमको ताप देते हैं, रोशनी देते हैं, उसका कभी बिल नहीं भेजते। चंद्रमा हमें प्रकाश देता है। अन्य जितने भी देवता हैं वो देवता नाम इसीलिए रखा गया है कि वो हमारे को समानता पूर्वक वितरण करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, निश्चित रूप से करते हैं। कभी लेट या कभी जल्दी वाली बात भी नहीं है उसमें, वो अपनी ड्यूटी में कभी फेल नहीं होते। और वो साधन जो है हमें पर्याप्त देते हैं, उनका उपयोग करना नहीं करना हमारे ऊपर है। तो देवताओं ने क्योंकि हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, हमें बहुत से जीवन यापन के लिए साधन दिए हैं, अतः हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उन साधनों के उपयोग से जो कुछ हमने अपना कर्म किया, कर्तव्य किया है, उससे जो कुछ उत्पादन हुआ, जो वृद्धि हुई, उसका कुछ अंश हम उनके लिए भी मतलब निकालें। हमको उसमें से देवांश निकालना चाहिए। इसको शास्त्रों में दशांश करना कहा गया है। देवताओं की आप उन्नति करिए यज्ञ से और कर्म से, और देवता आप लोगों की उत्पत्ति करेंगे। ये परस्पर धर्म का जो आदेश है, कर्तव्य का आदेश है, वो दोनों को ही दिया गया है। दूसरों के हित में कर्म करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जो आप लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं उससे आपका प्रभु की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 12वें श्लोक में देवता बिना मांगे आपकी उन्नति करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कभी देवताओं को नहीं भी दो तो भी वो आपके प्रति कृपा करते रहते हैं, वो आपसे कोई बदला लेने की बात नहीं करते। लेकिन आप उनके साधनों का, उनके दिए हुए साधनों का उपयोग करके स्वयं का पेट इतना बड़ा कर लो कि खुद ही सारा खा जाओ और बाकी किसी को नहीं दो। जिनने आपके साथ सहयोग किया उत्पादन में, उनको भी उचित और न्यायपूर्ण वितरण न करो। दूसरों का हड़प करने की इच्छा रखो तो इसका मतलब तुम संग्रह करोगे, तुम अपहरण करोगे लोगों से, तो तुम चोर हो। और निश्चित बात है कि तुम्हारे को जीवन में सुख शांति इससे नहीं मिलेगी और संघर्ष रहेगा। जो श्रम संघर्ष वगैरह का जो हमने देखा आंदोलन होता है, जो कम्युनिज्म आया और जो मतलब वायलेंट कम्युनिज्म आया, उसके पीछे यही कारण था। तो श्री कृष्ण ने
इस श्लोक में जो फिलॉसफी दी है वो कम्युनिज्म का और कैपिटलिज्म का एक विकल्प उन्होंने दिया है। इसको हम श्री कृष्ण का आध्यात्मिक अर्थशास्त्र या आध्यात्मिक समाजवाद का सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा विचार दिया है कि जो रिच पर्सन्स हैं, जो साधन संपन्न हैं, जिनकी ग्रोथ हुई है, उनको समाज में उचित और न्यायपूर्ण वितरण करना चाहिए। ये बात जो है वो मार्क्स नहीं समझा सके। अगर मार्क्स जो है वो धनी लोगों को समझाते, उन्होंने डायलॉग किया अनपढ़ लोगों से, श्रमिकों से किया, वो उनमें एकता आ गई, उसने वायलेंस को प्रोपेगेट किया, कई देशों में सत्ता परिवर्तन हुए, मारकाट मची, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर वो धनिक लोगों के दिमाग में ये बात बिठा देते जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वायलेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और समाज में समाजवाद जो है वो इगेलिटेरियन सिस्टम आ सकता था। इसके बाद सेकंड राउंड में मैं बात करूंगा। हाँ बिल्कुल, सेकंड राउंड में आपको बिल्कुल पूरा टाइम रहेगा। एक एक राउंड सबका हो जाए, फिर हम सेकंड राउंड की तरफ चलेंगे। अब हम चाहेंगे नागकर्णी साहब एक बार अपना पर्सपेक्टिव रख लें, फिर हम जैन साहब के पास चलेंगे और फिर तमन्ना जी का टर्न है। Are you able to hear me? Yeah, loud and clear. Yes, sir. Yes, sir. Good. My learned colleagues have already explained beautifully how the tradition of sacrifice or yajna has evolved from offering oblations into the sacred Agni towards more broader definitions, which equates effort and action also as yajna. Later Upanishads, for example, suggest that yoga or devotion and sacrifice are synonymous. The Setvashatara Upanishad, for example, as Jasab said, uses the image of the friction used to light up the sacrificial fire to describe the process of meditation, which is used for coming in contact with the divinity within us. Having said that, I also want to go back to what Subhashji started this discussion with by paying homage to the memory of Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji. Now it will be in order to recall her contribution and devotion towards the Bhagavad Gita. She's cut LPs on the 9th and the 12th Adhyay, for example, and most important of all, one of her most important and popular renditions from the Jnaneshwari, which is a commentary on the Bhagavad Gita by Sant Gyaneshwar, also known as Jnandev Maharaj Ji, is a piece called Pasaya Dan or Prasad Ka Dan, which speaks of this Sangoshti itself, this discussion, this knowledge itself as a yajna. And I'll do no better than to quote the original. Jnaneshwar ji says, Ata Vishwatmake Deve, Yene Vagyadne Toshave, Toshoni Mazadyave Pasaya Danahe. So, Vag Yajna, this entire, effort to get at the subtler and the more popular meanings of the Bhagavad Gita itself is a Vagyajna, which we are all performing for universal good. So, Ata Vishwatmake Deve, we are praying to the universal spirit divine, which is itself the yajna, as the verses that under discussions are shown, where Vishnu is also yajna, Hari is also yajna. Even Trika masters like Abhinava Gupta ji in Tantra Sar subscribes to this notion. Now, what are the fruits of this Sangoshti that Jnaneshwarji asks in this Vagyajna? Je Kharanchi Vyankati Sando, Taya Satkarmi Rativado, Bhuta Paraspare Zado Maitra Jivatse, Duritatse Timrazao, Vishwasya Dharma Surye Paho, Zo Je Vanchilato Te Laho Pranizata. So, to translate this into English, O Universal Spirit Divine, be pleased with this great yajna or homage of words,
that is the Gita, and being pleased, grant us a gift of boons. Let the crookedness of the crooked vanish. Let their propensity towards good deeds grow. Let there be peace and friendliness among all beings. Let the whole world witness the one true dawn of universal Dharma, the only true Dharma. Peace be upon every soul. Now, this is the spirit of Yajna that was evoked by the impeccable, incomparable Bharat Ratna Lataji for our benefit. And this is by coincidence, by a happy coincidence, we are all discussing here. I shall pass the baton for the next round because there are more speakers to come, and I shall await my turn. I have things others to say also, but I shall give Vidam to my Vani here. Thank you. Okay, thank you, फैंटास्टिक। तो अब हम आरपी जैन साहब से आग्रह करेंगे कि एक बार वो भी अपनी बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। Can you hear me? Yes, now we can. Yes. मुझे कोई ग्रंथों में से निकाल के तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो मैंने अपने जीवन से सीखा है और वो मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि गीता में कर्म सिद्धांत प्रमुख है और उसको हमारे गुरुजी ने कैसे एक्सप्लेन किया। जब कभी भी मैंने इतने विपश्यना शिविर के लिए जाता था तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि संसार में 4 कैटेगरीज होती हैं या 4 प्रकार के इंसान होते हैं जो उस जीवन की उस जर्नी के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो वो जो 4 प्रकार हैं, जो मतलब जिसमें कर्म फिलॉसफी मुख्य रूप से आती है, वो ये है कि पहली कैटेगरी जो है या पहला प्रकार जो है, वो लोग जो जन्म लेते हैं इस संसार में और आगे अपनी जर्नी तय करते हैं, तो उसके अंदर पहला जो उन्होंने बताया अपने लेक्चर्स में, जो हमें सुनने को मिलता है, उन्होंने बताया कि पहले एक ऐसा इंसान जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उसका मतलब ये है कि पिछले जन्मों का बहुत कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से अंधेरा, मतलब उसकी जर्नी जो है वो अंधेरे से अंधेरा, मतलब उसको दूसरे शब्दों में पाप से पाप की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी कैटेगरी जो उन्होंने बताई, वो बताई उजाले से अंधेरे की तरफ, मतलब पुण्य से पाप की तरफ इंसान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं या जो संस्कार वो पिछले जन्मों से लेके आया है, वो उसको आगे उस साइकिल में चलाते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो पॉजिटिव साइड उन्होंने बताई, वो ये है कि पॉजिटिव साइड में जो इंसान जिस तरह से आगे बढ़ता है, उसमें उन्होंने ये बताया कि अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है। एक कैटेगरी है जो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है, यानी कि पाप से पुण्य की तरफ बढ़ता है। और फाइनल कैटेगरी जो उन्होंने बताई या उन्होंने जो समझाया हमको सिंपल शब्दों में, वो ये है कि पुण्य से पुण्य की तरफ, लाइट से लाइट की तरफ जो जर्नी जाती है, वो ये है। और ये बेसिकली कर्म फिलॉसफी इसके अंदर प्रधान मैं मानता हूँ। और गीता में वैसे भी मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कर्म सिद्धांत सबसे प्रमुख है। यही चीज़ मैं बताना चाहता था, और क्योंकि ये मैंने पहले किसी से सीखा, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको मैं बता सकूं। फैंटास्टिक, गुड। एंड अनुभूत जो अनुभव है
उसके आधार पे जो आपने बात कही है वो मौलिक बात है असल में, और वो आचरण की भी बात है, जो कि सत्यनारायण गोयनका जी का आपने उदाहरण भी दिया था पिछली बार। तो जी इस बार आपने जो उनके हवाले से जो बात बताई है वो वाकई उन लोगों के लिए तो खास तौर पर इंपॉर्टेंट है ही, जो बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरलता से इन सारे गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर तमन्ना जी खोसला को हम आग्रह करेंगे कि वो भी अपनी बात कहें। Yeah. I'm extremely glad that I'm about to share something of my own thoughts on karma yoga, and the fact that apart from 12 and 15 chapter, third chapter is also extremely important in Gita, Bhagavad Gita. And Krishna, to start with, I would like to say that Krishna says in this chapter that nobody can remain without action anywhere. So whatever it may be, you are taking, you are having, you will be acting on something or the other. All सृष्टि के सारे प्राणी जो हैं वो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ, एक चिड़िया भी कुछ कर रही होगी, एक कॉकरोच भी कुछ कर रहा होगा, मतलब they would be doing something. Plants grow, for example. So, bound by their inherent modes of nature, all beings are engaged in some work. Karma yogi continues to work diligently to fulfill their responsibilities, but internally they are unattached to them. So, like, let's take example of Lord Janaka, the father of Lord Sita, and sorry, goddess Sita, and she was he was a king, but he was a Brahmgyani himself. So he performed all the tasks of the king, but despite that he was aloof from anything which was with him. Secondly, if you look at the work of, on the contrary, if you look at the work of Nanaka or Kabira or Surdas, they were extremely poor, but still they were unattached and they did their work as Brahmgyanis, So that is the whole thing. Um, but however, the hypocrites displayed external renunciation, but internally they are not in. Their senses are attached to the worldly things, and this is very true for many of the present gurus who call themselves Brahmgyanis, because becoming a Brahmgyani is extremely, extremely, extremely difficult. It's not an easy thing, because you have to be, you have to renounce everything in a certain way. And Krishna says that all living beings are integral part of God's creations and have roles and responsibilities to fulfill. Vedas prescribe, for example, yajna to please the celestial gods, who in return would provide you material gains. And those who live only for delight of senses are sinful, while those who do not are the ones who will achieve moksha. Krishna explains that unlike the rest of the humankind, the enlightened souls are not obliged to fulfill the bodily responsibilities. They are situated in knowledge of self and execute higher responsibilities of self. However, they do not abandon their social duties. Now, um, the ignorant, for example, give up on their duties prematurely. So only a Brahmgyani can do so. You are not supposed to. The Brahmgyanis do not. They might be living in home. They might be bearing the best, or they might be bearing the worst. They are not bothered. They are just concerned about the fact that this particular um, and that they are just immersed in God. They are not in any ways like trying to show themselves to be rich or poor. They are, whatever is given to them, they're happy with that. So for example, in the ninth shloka, for example, knife is good in the hand of a surgeon, but it's not good in the hand of a murderer. So as Shakespeare said, for there is nothing is good or bad, its effect is determined by how it is used. So the knife can be used in a certain way, and it can be used in another way. So yeah. um, uh,
So, for example, there is this katha which comes in Yoga Vishishta, where Rani Leelavati and her husband dies, and she calls upon Lotus Saraswati to ask her, like, what should I do? I want my husband back. What should I do? She says, okay, I'll show you. So she takes her to another world, where she shows how her husband is alive and how even she is there. So in Indian philosophy, we have so much of richness that it shows that the world is within world. So for example, right now we talk about Mars, life being in Mars, or we talk about extraterrestrial world or something. And the fact is, these things were given in our granthas first of all only. So if people were talking about world within world. So you might, for example, right now we are here. So there would be a world within this particular world also. So yeah, and for example, the celestial gods or devatas are in charge of administration of the universe. The Supreme Lord does his work through them. Uh, they live in higher material universe called Swarga or celestial abodes. These duties occupy specific posts. When we worship Yajna for Supreme Lord, the celestial kings are the celestial bodies are automatically appeased. Now, here I would like to point out, like, uh, how do we see a karma as good or bad? For example, our soldiers die on the borders, and what do you talk about the terrorists who are doing? So it's a very difficult task to say, because they are also performing a duty. Their shastras talk about jihad, for example. So how do you say that they are not right and we are right? So, but the fact is that any harm, or for example in our shastras, non-violence is the prerequisite. And if anything is harming somebody, if you are protecting somebody, that's another issue. But if you are harming somebody, that's not acceptable in our granthas. Similarly, if you look at the case of China, China is like China's god is Mao. So, can you see that Lord Krishna's, with 16 kalai, he was, apart from Jesus, it was only Lord Krishna who said he was God. Lord Jesus was said to be a son. So Krishna is the only God who said that I am God, Okay, and better. नेक्स्ट राउंड में so आप कंप्लीट yeah, कीजिएगा. ओके, थैंक यू. जी, थैंक यू. तो अब हम एक बार एक राउंड, अब चूंकि एक सेशन पूरा हो चुका है एंड बहुत ही डिटेल सेशन हुआ है, एक राउंड और करेंगे, ब्रीफ राउंड होगा. अब हम ब्रीफ राउंड में शुरुआत कर रहे हैं आचार्य जी से. Thank you, Sharma ji. And I'm just going to finish the later part of the verses that we are taking today. Now here, Yajna also refers to the Maha Yajnas in the 11th verse. We're talking here about the 5 Maha Yajnas that are to be done every day, which are going to take care of the small papas that we get through, like doing everyday work, like sweeping the floor or chopping in the kitchen, or like walking or talking, or all the karmas that we do in an auto mode. But due to them, there are the papa karmas. What are the karmas that we should do not to gain the papas from those karmas is called the Pancha Maha Yajnas, or the 5 Maha Yajnas. First is the Deva Yajna, fire rituals like Agnihotra, etc. I don't know if anybody has a clue of Agnihotra here, but I do not have time to explain it. But you can see, it was a kind of fire ritual that was taken care by men, and this Agni was invoked, which was taken care, and every day it was with them. Wherever they would go, they would take it with them, and it was done with the law of faith, and as a ritual for every day. The second one is the Rishi Yajnas, study of scriptures and following them. Now, not only study of the scriptures, but also following them is called a Rishi Yajna, a yajna that we do towards the rishis.
The third one is called the Pitru Yajna, performing rituals like Shraddha, etc. for our ancestors, Pindadanam or Shraddha, etc. These are the small rituals that we do for our ancestors. Then the next one is the Manusya Yajna, seva of guests, of people who are underprivileged or who are about their maturity line. I mean, they are towards their later part of life. And the last one is called the Bhuta Yajna, offering food and water to insects, birds, etc. Now, whenever we see that, if you look at the ancient way of even eating food, it was done with a prayer. It is done that first the food is invoked with Brahmarpanam Brahmavi, Brahmagno Brahmanahutam, Brahmaivate Nagantavyam, Brahma Karma Samadhina. So first this shloka is invoked in the food, and that this food is like a yajna that I'm going to perform. After having the food, the utensil was cleaned with water, and this water, which had these small grains of food, was offered on the floor, which was supposed to go to the underworlds, in the Naraka, and to the jivas that live in the underworld. Now, this whole process of having food, having one meal itself, is called a yajna. So imagine the kind of yajnas that we are performing every day. Now, in the Veda Purva, there are the 4 disciplines that are talked about as performing yajnas. The first one is called the Sat Karmani. Sat Karmani. Sat means the right, Karmani means action. Right actions like doing japa, punya karma, seva, etc. The second one is Sat Gunaha, by having healthy virtues, speaking of truth, non-violence, etc. Sat Bhavana, having empathy towards everybody. We're not talking about sympathy, we're talking about empathy towards everybody. That comes through our heart. And the last one is the Samadhi Yoga, which comes by doing yoga postures like pranayama, etc. Now, by doing these 4 rituals, we are talking about the Karma Yoga, that is also called the Upasana Yoga, which is mentioned in the Veda Purvas, which is to gain oneness with Ishvara. So these 4 yajnas or the 4 rituals are done to gain oneness with Ishvara. In the 12th verse, Lord calls a human being a stenaha, thief. He says that anybody who is taking from me in abundance, I mean, you're all getting in abundance, and you're all getting it because of your karma phala. Whatever karmas you have done, the desires that you had in your previous life, you're getting from me in abundance. But by asking again and again and again and again and again and again, you go down so much that, like a thief, you want to deprive others of what they are supposed to get. Instead of having little one meal that is really needed for your survival, if you keep asking for more and more and more, which will make the others not capable of having their meals, then you become a thief. You are a thief in my eyes. Now he says that, why don't you give back to nature? All the devatas are giving you. What have you got to return back to them? You get water from the water devata, but you give them back as dirty water. You're getting sunlight. Do you thank the Lord for getting sunlight that you get every day? No, you don't even thank them. What can you do? Here, Lord also talks about the conversation system, and he says that give back nature whatever you can. Why don't you plant trees, which is the most important thing that we are supposed to do right now. If you look at the entire earth and look at the system that we have at the moment, Dhanam is another charity, is another way of taking care of this entire cosmos. It says that this body belongs to Ishvara and I should do beneficial karmas only. अगर तुमसे मैं मेरा नहीं छूट रहा है, if you're not able to give up this I and mine, then at least say that I'm going to do beneficial karmas for others from this body. Okay, I'm going to do karmas. You cannot leave the I, then at least do beneficial karmas. Fantastic, fantastic. Now, आप 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए. Time is out. Okay, now I'm going to talk about the last one, the 14th and the 15th, the Kram of the Srishti Kram that we're talking about. 4 kinds of jivas that are born in this entire cosmos. One is the Jarayuja, the mammals, the Udbija, the jivas born from seeds, plants, etc. Andaja, born of eggs,
then of Swedaja, born of sweat, etc. These are the four kind of jivas that are born in our Shastra. They are born from annam, that is food. Even when we talk about the semen or egg, it is all made of annam. Annam is because of the rain. Annam can grow, food can grow only because of rain. Rain is there because of yajna. Yajna karmas, if they are not yajna karmas, then there is no rain. Now, yajna karmas are there, which are mentioned as the karma is born from Veda. If there were no Vedas, how would you know what karma is or what exactly you are supposed to do? So, Veda is the major source of your karma. Where are Vedas born from? From Ishvara. And Vedas talk about yajna. Yajna makes us come back one with Ishvara. Now, it's not that, Ishvara is there all pervasive. He is available for everybody. Just like water is available for everybody. But in order to drink water, we need to dig a pond or have a tap. Similarly, in order to gain Ishvara's blessings, we need to perform yajna karmas. Only then this entire cosmos will be taken care of. Thank you. Thank you. Jasa. अगले श्लोक में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रजापति सृष्टि की रचना करते हैं तो हमारे जहां ट्रेडिशन जो है आयुर्वेद भी सिद्धांत को लेता है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो जो कुछ भी सृष्टि में है उसी का प्रतिनिधि हमारे शरीर में है। तो जितने भी देवता की चर्चा है उन देवता का ही अंश हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। और इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है कि जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है और स्थूल शरीर है। इन सब का ही कॉरेस्पॉन्डिंग डेटी जो है वो प्रकृति के सारे तत्वों में स्थित है। तो इस दृष्टि से जो देवता है, जो प्रकृति की सारी शक्तियां हैं, उनका और हमारे शरीर में स्थित जो वो सारे तत्व हैं उनके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यदि ये बैलेंस है तो हमारा स्वास्थ्य है, यदि बैलेंस है तो हम सुखी हैं। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि जो देवता जो है देवान भावयता नैनोते देवा भावयन्तु वह, कि हमारे अंदर के जो भी तत्व हैं उन तत्वों को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रकृति की उन सारी तत्वों की अभिवृद्धि की चिंता अवश्य करनी चाहिए। यदि प्रकृति के वो सारे तत्व ठीक हैं, वो सारे देव तत्व और सारी शक्तियां ठीक हैं, तो हमारे अंदर जो वह शक्ति विद्यमान है वह भी ठीक रहेगा। और इस रूप में परस्पर जो व्यक्ति और प्रकृति दोनों के बीच में जो बैलेंस है, उस बैलेंस के रखने से ही हम सुखी हो सकते हैं और प्रकृति भी स्थिर रह सकती है। और इसमें यदि हम किसी प्रकार से प्रकृति की उन दी हुई चीजों को यदि हम केवल अपना मान करके अपने लिए उपयोग करते हैं तो फिर बैलेंस ठीक नहीं रहता और ये एक प्रकृति की शक्ति की चोरी के समान है। तो इस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि अभी चर्चा हुई है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि प्रकृति में भी यज्ञ चल रहा है, पूरी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। और वो जो यज्ञ है जिसको कि अपने छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में उसको पंचाग्नि विद्या कहते हैं, कि जब जीव है वह जीव दोबारा इस सृष्टि में कैसे आता है। तो जब जीव शरीर छोड़ता है तो वह सूर्य और चंद्र के किरणों के द्वारा वो द्युलोक को पहुंचता है। द्युलोक से फिर वह मेघ के रूप में उपस्थित होता है, मेघ से फिर वह वृष्टि के रूप में आता है, वृष्टि से फिर अन्न के रूप में आता है और अन्न से फिर पुरुष और पुरुष से स्त्री होते हुए फिर वो व्यक्ति के रूप में फिर उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार जो एक प्राकृतिक यज्ञ है उसके द्वारा तो हमारा जन्म पुनर्जन्म इत्यादि सब चलता रहता है, हम नए शरीर को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस क्रम में जो एक रिचुअल हमारे यहाँ होता है वह भी उसका प्रतीक है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा,
कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो आहुति डालते हैं वह आहुति फिर अग्नि के द्वारा सूर्य तक पहुंचता है और फिर वही सूर्य वृष्टि और फिर वृष्टि जो पृथ्वी और पृथ्वी में अन्न फिर वह पुरुष और स्त्री के द्वारा फिर से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। तो जो सृष्टि का यज्ञ चल रहा है जिसके द्वारा ये सारी प्रक्रिया ठीक से चल रही है और उसी प्रक्रिया के रूप में हम एग्जिस्ट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान अगले श्लोक में जो हम अगले सप्ताह में करेंगे कि कहते हैं ये जो चक्र है कि प्रकृति से मन और मनुष्य से प्रकृति, इस चक्र को हमें मेंटेन करना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हि अघायु इंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवति। तो इस चक्र को जो नहीं समझता है उसको तो जीने का अधिकार नहीं है। और बस 10 सेकंड में और लेना चाहता हूं कि अब जो ये ग्लोबल लेवल पे बात आई है कि जो डीप इकोलॉजिकल मूवमेंट है जो आर्ने नेस ने इसको चलाया, वो यही कहते हैं कि आप अपने को और प्रकृति को तभी तक सुरक्षित रह सकते हैं जब आप इस भावना को समझें कि प्रकृति और कुछ नहीं है, आपका ही रूप है और आप प्रकृति के रूप हैं। इस तरह से यदि आपका भाव होता है तभी आप बिना किसी प्रयास के प्रकृति की वैसे ही सुरक्षा कर सकते हैं जैसे अपने श्वास प्रश्वास की सुरक्षा बिना प्रयास के करते हैं। तो इस प्रकार का जो यज्ञ है उस यज्ञ को हमें समझना है। तदनुरूप निष्काम भाव से यदि हम कर्म करते हैं तो अपना भी कल्याण, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण और पूरी मानवता का कल्याण हम कर पाएंगे। यही संदेश देना चाहते। फैबुलस, गुड। तो अब हम नाडकर्णी साहब से आग्रह करेंगे। नाडकर्णी साहब। थैंक यू। Acharya ji has explained very beautifully the transition from the great yajna to the daily 5 yajnas which a grihastha is supposed to perform. And as she explained, there is the Deva Yajna, there is the Pitru Yajna, there is the Brahma Yajna, there is the Bhut Bali, and Manusha Yajna also. Now, a step further in that direction is the idea of deification of these functions, where you get a particular devata associated with each of these Maha Yajnas that daily we are supposed to perform. And the best example, by very happy coincidence, is the Panchayatana, which I have been researching and collecting over the last 30 years. And there's this beautiful example of these icons called Panchayatana, which I am holding forth. This is a Devi Panchayatana, where it has the Devi in the form of a tiger in the front, and here you are. There is Ganesh ji, there is Shiv ji, and there is Akhand Bharat. कैमरे के सामने लाइए नाडकर्णी साहब, कैमरे के सामने। Are you able to see? Now are you able to see? Yeah. See, this is Ganga ji also here. The Kalash, the Devi's tiger is there. There is Ganesh ji, there is Nandi ji. And of course, the world supporting serpent is at the bottom, Anant Nag. Yeah. A more sort of conventional Panchayatana would be this. You know, where the five deities, there is Aditya here also, Surya, there is Shiva Parvati, there is Ganesh ji, and Garudarud Vishnu bhi hai idhar, inki pratima choti si hai. So, these are the functions that have got ingrained in our Indic culture, and it is my humble contention that this is the spirit of giving back. You know, Atithi Dharma is also involved in this Mahayajna. Propagation and study of knowledge is also involved, as also the care of ecology. As Acharya said, you know, Bhut Bali involves even feeding ants and other animals and taking care of lives around you. And of course, there is the great Mahayajna that you do by, you know, Agni ka jo chayan hota hai, that is Deva Yajna for, and then of course setting aside a little bit of food for ancestors or remembering the chain of beings because of whom we are here.
Now, having said all this, one of the beautiful things that is also mentioned in the slokas that we are discussing today is the cosmic cycle of how the food is generated, how the plants sustain us, how the sacrifices sustain energy, and how the whole rain cycle and other things. At the same time, there's a wonderful transformation that is taking place right now before our eyes. And if you will permit me to draw your attention to that, see, the farmer has always been known as the Annadata. But if you looked at the recent budget, he's been now looked on as a Urja Data. You know, I'm talking about the green economy. I'm talking about the green fuel, which is supposed to be produced from the very food or the bagasse or the sugarcane or the grains or through the agency of ethanol. So if you take that sublime image from former times and come to our own times, here what we are seeing is actually the huge transformation of India itself. The new fuel is expected to halve the cost of the old fuel. This diversification of agriculture towards energy and power is aimed at saving rupees 12 to 15 lakh crores over the next few years, which brings me from the area of Artha to the domain of Dharma back again, where the Lord declares in the Srimad Bhagavatam to his disciple Uddhava, Yajnoham Bhagavatamaha. I, the son of Vasudeva, I am Yajna himself and or herself. The same refrain is found in the Vedas, where you find the epiphany, Yajno vai Vishnuha. You know, so all these things from the old tradition to modernity now and to the prosperous future, by doing mindful right action, is the way forward, I would submit. Thank you. आपने ये जो बात कही है इसको वैसे हमारे बहुत आपने फार्मर्स की भी बात की है और हमारे जो ग्रामीण इलाके में भी जो लोग रहते हैं वो इस दर्शन से किस तरह से एकमेव हैं। ये हमारे जो ये रात को सर्दी के दिनों में अलाव तापते हुए जब भजन गाते हैं या गर्मी के दिनों में जब थोड़ा सा ठंड के लिए बाहर बैठते हैं, तो भी ये ग्रामीण परिवेश भी जो है वो इस तरह की बात कहता है कि वो कहते हैं कि सदा भवानी साथ में, सन्मुख रहे गणेश और तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे लोक जीवन में ये परंपरागत चीज है। असल में मतलब कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं उन लोगों को, वो सब इस तरह से उनके जीवन में रच बस गया है कि वो इस तरह से इसको लेते हैं। और आपने जो फीमेल और उसकी बात कही है, शक्ति की बात कही है, तो ये भी बात हमारे एक विद्वान मित्र हैं वो कहा करते हैं अक्सर कि केवल सनातनी परंपरा ऐसी है जिसमें कि हमारे जो भगवान हैं उनके साथ में शक्ति का स्वरूप हमेशा से रहा है। बाकी जो रिलीजन है उनमें ये अभाव दिखता है, वहां केवल मेल डिटीज हैं, वो चाहे अल्लाह के नाम से हो और चाहे कोई और हो, ठीक है, नाम तो ले ही जा सकते हैं बहुत, बट ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिविटी है हमारे यहाँ और बहुत ही एक विलक्षण परंपरा है जिसमें कि हमारे शक्ति को पहला स्थान मिलता है और फिर भगवान स्वयं है। ये एक बहुत विलक्षण बात है। तो आपकी इस बात से मुझे वो रेफरेंस याद आ गया है। और अब मैं चाहूंगा कि खंडेलवाल साहब पूरा कर लें। वैसे मैं एक बात और सभी पैनलिस्ट को भी और हमारे सभी दर्शकों को भी बता देना चाहते हैं हम लोग कि यह अनवरत चलने वाला ज्ञान यज्ञ है। इसमें हम पूरी बातें कहेंगे, बट यह है कि समय का एक क्रम भी हमारे दर्शकों के हिसाब से हमें बनाए रखना होता है। इसलिए अभी तो ये एपिसोड शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, इसलिए बहुत कुछ कहना है इसमें। तो खंडेलवाल साहब कंप्लीट कीजिए। 12 तक मैंने किया था। श्लोक 12 और 13 को हम संयुक्त रूप से अगर पढ़ें तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण अर्थशास्त्र के सभी अंगों के बारे में बात करते हैं, जितने फंक्शंस हैं इकोनॉमिक्स के उन सबको कवर करते हैं। श्लोक 13 में वे स्पष्ट कहते हैं कि ये आप यज्ञ अवशिष्ट के भोगी बनिए। उन्होंने एम्प्लॉयर्स को या जो मतलब कैपिटलिस्ट हैं उनको ये संकेत दिया है कि जो कुछ ग्रोथ होती है, जो कुछ उत्पादन होता है,
उसका उचित और न्यायपूर्ण वितरण करने के बाद जो शेष रहे उसका आप उपभोग करिए। अन्य सभी के कल्याण के लिए भी कार्य करने का ध्यान रखिए। श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट किया है कि ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे समता प्राप्त होगी, आपके मन में जो है वो उचाट नहीं होगा, किसी प्रकार के संघर्ष का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको समता बुद्धि की प्राप्ति कर्म से इस प्रकार हो जाएगी। जो अर्जुन का प्रश्न था उसका यहाँ उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कर्म के द्वारा भी हम समता की प्राप्ति मतलब कर सकते हैं। इसके बाद श्लोक 14 और 15 में उन्होंने अपना मत जो है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि सृष्टि का जो चक्र है उसका संचालन कर्म के द्वारा ही होता है, और सूर्य तपते हैं, वर्षा होती है, वनस्पति उगती है, उसका उपभोग करते हैं, उससे वीर्य का निर्माण होता है, प्राणी की उत्पत्ति होती है। ये सृष्टि का चक्र इसी से चलता है। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो कुछ उत्पादन करो उसको आप देवताओं को दो, देवताओं को आप पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करें। हम मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो मालिक जो है उसको जो है सेवक खुश रखे और सेवक को मालिक खुश रखे। ये श्री कृष्ण कहते हैं दोनों एक दूसरे के हितों का ध्यान रखे, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में हो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो। ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को अच्छी प्रकार से करेंगे, उसी से ही विकास होगा। हम अपना वेतन या पारिश्रमिक मतलब कमाएंगे और अपनी संस्था के विकास के लिए भी हम योगदान जो कर सकेंगे। हम काम की चोरी करेंगे, समय की चोरी करेंगे, उत्पादकता हमारी अगर कम होगी तो निश्चित रूप से मानिए कि पब्लिक सेक्टर में जैसे बहुत सी संस्थाएं बीमार हो गई, बहुत सी कंपनियां बीमार हो गई, बहुत सी प्राइवेट सेक्टर में भी ये परेशानी हुई जहाँ श्रम संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गीता और श्री कृष्ण जो है इनका अध्ययन तो हमारे देश में हुआ, लेकिन इसको आचरण में लागू करने में हम कहीं पीछे रह गए। नहीं तो ग्रोथ की भी कमी नहीं होनी चाहिए थी, और न्यायपूर्ण समान वितरण अगर होता तो हमारे देश में धन और आय के वितरण की जो भारी असमानता है वो पैदा नहीं होती। तो हम भगवान को मानते हैं पर भगवान का कहा हुआ नहीं मानते, ये इससे स्पष्ट है। अगर भगवान का कहा हुआ भी मानने लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्थशास्त्र और प्रबंध के विद्वान के रूप में बिल्कुल स्थापित होते हैं पूर्ण रूप से, और देश की जो समस्याएं गंभीर समस्याएं हर व्यक्ति की ड्यूटी है। ये जो आप इशारा कर रहे हैं इसमें हर एक व्यष्टि और समष्टि जिसको भगवान यहाँ संबोधित कर रहे हैं, इसमें हम यदि इस तरह से देखें तो हमारी सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए उन्होंने कहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को अपना अपना नहीं, इसके अलावा भी यदि हम पूरे संपूर्ण तरीके से भी देखें तो हर एक व्यक्ति की, हर एक गृहस्थ की ये ड्यूटी है कि वो अपने आचरण में इस चीज को लाए कि उसके आस पड़ोस में, उसके आगे से गुजरने वाले लोग, उससे मिलने जुलने वाले लोग, कहीं भी ऐसा न लगे कि यह असमानता जारी है। यह आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अब हम चाहेंगे डॉक्टर तमन्ना खोसला जी से कि तमन्ना जी 60 सेकंड में आप अपनी बात को रखिएगा बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से। जी तमन्ना जी। तो जो नेक्स्ट श्लोक था वो था इट्स अबाउट सिमिलरली वर्क इज इट सेड नीदर गुड नॉर बैड work done for enjoyment of one's senses and gratification of one's pride is the basic cause of bondage in the material world, and one from bonds of Maya and attracts divine grace. Since it is our nature to perform actions, we are forced to work in one of the two modes. We cannot remain without working. So, कर्म करना तो हमारे सबके मतलब it's like it's within us. You know, nobody can stay without work. So the karma theory talks about the fact that you know, in the Narada Purana, for example, Narada ji says one has to reap the effects of good and bad karma. So if you are good and you've performed well in certain aspects, then you will reap good in good faith, and if you've done something bad, you will achieve in bad faith. So yeah, thank you. Very good, fantastic, and
you kept your time limit, so thank you, well done. And अब हम चाहेंगे आरपी जैन साहब से कि प्रोग्राम कंक्लूड कर दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, कंक्लूजन में? जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है? यस, अब आ गई है जी। जी, कर्म फिलॉसफी के ऊपर क्योंकि हम डिस्कशन सारी कर रहे थे और फिर हमने नेचर पे आए, कुदरत पे आए, तो आजकल की जो कठिनाई है, जो एनवायरनमेंट की कठिनाई है, अगर उसके ऊपर हम एक प्रिंसिपल लागू करें जो कि जैन प्रिंसिपल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो प्रिंसिपल है अपरिग्रह का। अपरिग्रह हमें ये सिखाता है नीड वर्सेस ग्रीड। अगर हम इंसान इन दोनों में फर्क करना सीख लें तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हर रोज की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो सकती हैं। एक चीज ये कहना चाहूंगा। दूसरा कर्म में गोयंका जी से मैंने ये भी सीखा है कि यदि हम नीम का पौधा लगाते हैं और लगाने के बाद ये एक्सपेक्ट करें कि हमें आम जैसा मीठा फल मिल जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। अगर नीम लगाएंगे, कुछ कड़वा बोलेंगे, तो उस कड़वाहट भी सामने आएगी, मिठास तो सामने नहीं आने वाली। तो कर्म फिलॉसफी भी मैं मानता हूं कि यही सिखाती है कि जैसा हम कर्म करेंगे, जो हम बोलेंगे या जो हम जिस जड़ पे जाएंगे, उसी तरह का हमें फल मिलने वाला है। गुड, वेरी गुड, वेरी वेल सेड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर आर.एन. झा साहब, और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई थी डॉक्टर तमन्ना खोसला जी, और साथ ही मोतीलाल बनारसी दास के संचालकों में से एक श्री आरपी जैन साहब, और सीनियर एडिटर कॉलमनिस्ट मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे विठल जी नाडकर्णी, और ऋषिकेश से जुड़ी हुई थी आचार्य राधा जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे सीनियर प्रोफेसर खंडेलवाल साहब, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे राजस्थान सरकार के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज जी ओझा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम गीता जिज्ञासु की दृष्टि में, और दिस प्रोग्राम वाज पावर्ड बाय MLBD Research and Resource Foundation, which is initiated by मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशिंग हाउस since 1903। आप सब हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ रहे, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।